Good afternoon, everyone. I'm Amalesh Kumar. Today, I'm going to teach you about date function. In previous video, I have already discussed numeric functions, power, round, mod. There is another video. In that video, I had explained about the string functions. String functions are also known as text functions. In that video, I had discussed all these functions with suitable examples. So today in this video I will discuss this date functions. You can see this diagram. Single row functions तीन तरह के होते हैं, numeric function, a string function and date and time function. So here date functions. So let us start. First I'm going to discuss now function, date function, month function, month name, year, date, day name, day function. So what is now function? In the previous video I had discussed about now and sysdate function. So now function, it returns the current system data and time. So first I'm going to discuss this now once again and sysdate function. So let us start, children. Now function, you are knowing system का once you see it returns the current system data and time. System का जो current जो data and time होता है उसको return करता है. तो simply how you can call this one with the help of select statement. Select now and just use it. So you can see 2020 month is August and today is what, 11th, and time is, you can see time, and you can see a time in my screen is also, so 1:18 p.m. so it's showing here. When you use this sysdate function, so you will get the same result. sysdate आप देख सकते हैं यहाँ, तो मैंने वीडियो में बताया है, आप उस वीडियो को देख लेंगे, बट अभी शॉर्ट में मैं बता दूं sysdate और now फंक्शन में डिफरेंसेस क्या होता है. कि now फंक्शन जो होता है कि when query is going to execute the time, date and time, when query is going to execute, so that time it will return. But the sysdate function means what? When query has been executed, the date and time when query has been executed, that it will return. So let's I will show with the help of practical. So if I'm using this select now and sysdate, so you can see both result will be same. आप देख सकते हैं यहाँ पर both result will be same. बट यदि हम इसमें थोड़ा चेंज कर दें, now and sleep 5 सेकेंड के लिए उसे मैं सिलेक्ट कर दूं एंड देन नाउ यूज करें, तो आप देखेंगे क्वेरी ये 5 सेकेंड्स के बाद ये एग्जीक्यूट करेगा, बट जो रिजल्ट आएगा वो देख सकते हैं. मैंने इस नाउ, स्लीप, नाउ, ये सभी जो है वह एक टाइम पर जो है वह एग्जीक्यूट होने का टाइम जो है वह था, जो कि एग्जीक्यूशन जो इस नाउ का हुआ वह भी दिख रहे हैं 120, एंड 5 सेकेंड स्लिप होने के बाद भी जो है वह 120 टाइम शो कर रहा है. आप सेकेंड भी देख सकते हैं 15 है, यहाँ भी 15 है. बट इन द केस ऑफ sysdate, यदि हम सेम यहाँ पर आपको sysdate कर दे, sysdate एंड इन द प्लेस ऑफ नाउ यदि sysdate करेंगे तो दोनों में डिफरेंसेस आपको क्लियर हो जाएगा. आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नाउ एक क्वेरी किस समय एग्जीक्यूट करना था, वह टाइम जो था वह टाइम जो है वह यहाँ पर दोनों में दिखा रहा है 5 सेकेंड स्लिप होने के बाद भी. लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट sysdate जो रन किया आप देख सकते हैं ये 120:58 सेकेंड, जिस समय क्वेरी एग्जीक्यूट किया पहला sysdate जो है वो आपका एग्जीक्यूट किया 120:58 सेकेंड, देन 5 सेकेंड स्लिप हुआ, देन नेक्स्ट क्वेरी एग्जीक्यूट हुआ तो 5 सेकेंड के बाद एग्जीक्यूट होगा. तो यू कैन सी हियर द डिफरेंसेस 21 एंड 3 सेकेंड्स, तो दोनों में डिफरेंसेस आप देख रहे हैं 5 सेकेंड्स का. तो यहाँ पर जो नाउ है, जो व्हेन क्वेरी इज गोइंग टू एग्जीक्यूट, दैट टाइम विल
that date and time will show. But sysdate stands for system date. Sysdate stands for system date, and when query has been executed, the date time when query has been executed, that time will be written by the sysdate. So I hope children, in previous video I had discussed this. So now and sysdate difference आपको समझ में आ गया होगा. Now moving to the next one. नेक्स्ट आप देख रहे होंगे डेट फंक्शन. डेट फंक्शन का काम क्या है? इट रिटर्न्स द डेट पार्ट फ्रॉम द गिवन डेट टाइम एक्सप्रेशंस. तो आप देखेंगे केवल डेट पार्ट को रिटर्न करेगा. तो मैं इसको यूज करने जा रहा हूँ. आप देख सकते हैं यहाँ पर सेलेक्ट, और यदि हम यहाँ पर डेट डालें और यहाँ पर नाउ को पास कर देते हैं, नाउ को पास कर देते हैं, तो नाउ में क्या करेगा हमारा? नाउ फंक्शन जब कॉल होगा तो जो सिस्टम का डेट एंड टाइम जो है वो रिटर्न करेगा. तो अब जब इसको रन करेंगे तो यहाँ पर नाउ फंक्शन में सारा रिटर्न करेगा, बट यहाँ पर केवल डेट पार्ट विल शो. आप देख सकते हैं यहाँ पर तो डेट पार्ट शो कर रहा है. यहाँ पर आज हो गया आपका 22 2020 8 अगस्त एंड 11th. आप देख सकते हैं यहाँ पर. यदि हम यहाँ पर सिंपली यहाँ पर कुछ हम और पास करते हैं, यहाँ सेलेक्ट डेट, और यदि हम यहाँ पर पास करते हैं फॉर एग्जांपल क्या पास कर दे, चलिए यही पास करते हैं 2022-08-11 स्पेस के साथ. यदि हम टाइम भी पास कर दें यहाँ पर 21 और सेकेंड भी पास कर दे, तो अब देखिए इसमें से हमें क्या देगा. आप देख सकते हैं यहाँ से पूरे में से केवल जो डेट है, आज का जो डेट है, या डेट आज का नहीं कर सकते, जो डेट हम यहाँ पास करें वो डेट को ले रहा है, बाकी टाइम को छोड़ रहा है. सो दिस इज़ अबाउट द डेट फंक्शन. नाउ मंथ फंक्शन क्या काम करता है? मंथ फंक्शन जो है वो मंथ को रिटर्न करता है. तो इन द प्लेस ऑफ यदि हम यहाँ पर मंथ लिख देते हैं, तो मंथ हमारा कौन सा है, मंथ हमारा कौन सा है, तो आप देख सकते हैं मंथ हमारा कौन सा है, वो मंथ रिटर्न करेगा. तो यहाँ पर क्या रिटर्न किया? 8 मंथ जो है हमारा, अभी 8वां चल रहा है, तो 8वां मंथ जो है रिटर्न किया. अब इसी में यदि हम मंथ नेम कर देंगे तो यहाँ 8 ना आकर क्या आएगा? मंथ का नाम आएगा. तो 8वां महीना जो है वो आपका अगस्त का होता है, तो अगस्त दिखाएगा यहाँ पर. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मंथ नेम और मंथ में क्या डिफरेंसेस है. मंथ में जो है वो न्यूमेरिक फॉर्म में आता है, मंथ नेम में जो है मंथ का नाम आता है. अब हम लोग बात करते हैं ईयर. ईयर फंक्शन का काम किया है. आप देख सकते हैं वह क्या करेगा? केवल ईयर को रिटर्न करेगा. तो यदि हम यहाँ पर नाउ को कॉल कर दे, इस फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर नाउ को कॉल कर दे, नाउ को, तो और यहाँ पर केवल ईयर पास कर, ईयर को फंक्शन को कॉल करे, ईयर को, तो केवल 2022 आएगा यहाँ पर. बिकॉज ईयर फंक्शन क्या करता है? जो भी आप डेट पास करते हैं, ध्यान रखने की बात है, जितने भी डेट फंक्शन का बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपको डेट ही पास करना पड़ेगा एज अ पैरामीटर. तो जो डेट पास करेंगे उसमें से जो ईयर आएगा, ईयर को रखेगा, ईयर को रिटर्न करेगा, बाकी को वह रिटर्न नहीं करेगा. ईयर फंक्शन भी आप सभी को समझ में आ गया. नेक्स्ट है डे. देखिए डे और डे नेम, मंथ नेम, डे नेम दोनों सेम ही है. मंथ में क्या कर रहा था? मंथ का नंबर रिटर्न कर रहा था. मंथ नेम में क्या कर रहा था? मंथ का नाम को बता रहा था. सेम वे डे में क्या करेगा? डे रिटर्न करेगा, और डे नेम में क्या करेगा? डे का नाम रिटर्न करेगा. चलिए आप लोग यहाँ पर पहले डे डाल देते हैं, डे नाउ. आप यहाँ पर देखेंगे तो डे अभी हमारा 11th है, तो 11 शो करेगा. बट यू वांट टू नो कि आज कौन सा डे है, तो फॉर दैट यू हैव टू यूज व्हाट? डे नेम. डे नेम, तो आप आज का जो डे है, आज थर्सडे है, तो इट विल रिटर्न थर्सडे. सो अभी आप सभी को जो है जो डेट फंक्शन है आप सबको समझ में आ गया होगा. बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं यहाँ पर, तो आप उस एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं. क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से आपको क्वेश्चन आएंगे जितने भी सिंगल रो फंक्शंस है. मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूँ, सिंगल रो फंक्शन जो है वह क्या क्या आपके बताएं? न्यूमेरिक फंक्शंस, देन स्ट्रिंग फंक्शन जिसको हम लोग टेक्स्ट फंक्शंस भी बोलते हैं, देन डेट फंक्शन. तो इस सभी फंक्शन से क्वेश्चन आते हैं. आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे आप लोग. मैं एक क्वेरी लिखना चाहता हूँ जिसमें आपको सारे फंक्शंस का यूज दिखा दे.
जिससे आपको और आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए मैं एक क्वेरी में सभी डेट फंक्शन का यूज कर लूँ। तो सिलेक्ट सबसे पहले जो मेरा जो फंक्शन था आप देखेंगे यहाँ पर, तो डेट डाल देते हैं। डेट के अंदर हम लोग नाउ पास कर देते हैं, नाउ हमारा फंक्शन है। फिर नेक्स्ट क्वेरी जो है हम लोग डे डाल देते हैं, डे के अंदर नाउ पास कर देते हैं। नाउ हम लोग इसलिए पास कर रहे हैं ताकि हमें पूरा डेट पर देने की ज़रूरत ना हो। फिर हम लोग डे नेम डाल देते हैं, डे नेम डाल देते हैं। डे नेम के अंदर हम लोग नाउ को पास कर देते हैं। देन हम लोग फिर यहाँ पर क्या डाल दे, ईयर डाल देते हैं, ईयर इसके अंदर भी नाउ पास कर देते हैं। इस तरह से क्वेरी आप ना एक साथ बहुत सारे क्वेरी को आप एक साथ जितने भी फंक्शन से वो कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा जितने भी फंक्शंस हैं, तो सारे यूज करेंगे आप। और हमें लगता है कि सिंगल रो फंक्शंस जो हमारे न्यूमेरिक फंक्शंस हो गए, स्ट्रिंग फंक्शंस हो गए, डेट फंक्शंस हो गए, इनमें किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक क्वेश्चन है यहाँ पर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगल रो एंड मल्टीपल रो फंक्शंस। सिंगल रो फंक्शंस और मल्टीपल रो फंक्शंस का डिफरेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन, तो आप सभी इसको जरूर ध्यान रखें। सिंगल रो फंक्शंस यहाँ देख रहे होंगे, इट ऑपरेट्स ऑन अ सिंगल रो एट अ टाइम, बट मल्टीपल रो फंक्शंस इट ऑपरेट्स ऑन ग्रुप ऑफ रोज, इट रिटर्न्स वन रिजल्ट पर रो, इट रिटर्न्स रिजल्ट फॉर अ ग्रुप ऑफ रोज। ग्रुप बाय क्लाउज का भी वीडियोस मैंने डाला है, आप देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। इट कैन बी यूज इन सेलेक्ट वेयर एंड ऑर्डर बाय क्लाउज, इट कैन बी यूज इन सेलेक्ट क्लाउज ओनली, इस सेलेक्ट के साथ यूज होता है। मैथ्स स्ट्रिंग एंड डेट फंक्शंस जो कि बता चुके हैं सिंगल रो फंक्शंस है। मल्टीपल रो फंक्शंस में आपके जो हैं वो 5 ही होते हैं, मैक्स, मीन, एवीजी, सम, काउंट एंड काउंट स्टार। काउंट स्टार को आप नहीं कर सकते, काउंट के आधार पर ही रखेंगे, इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है, ठीक है, काउंट और काउंट स्टार में। तो अब हम लोग देखिए सिंगल रो फंक्शंस तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं मल्टीपल रो फंक्शंस। मल्टीपल रो फंक्शंस जो होते हैं जिसको हम लोग एग्रीगेट फंक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्रीगेट फंक्शंस बोलते हैं, या फिर ग्रुप फंक्शन भी बोलते हैं। ध्यान रहे, एग्रीगेट फंक्शन और मल्टीपल रो फंक्शन और ग्रुप फंक्शन। सो ग्रुप फंक्शंस भी बोल सकते हैं। क्या क्या फंक्शंस यहाँ पर हैं तो मैं अभी करके दिखाऊंगा। देखिए मैक्स बहुत ही आसान है। मैक्स क्या करता है? मैक्सिमम जो है वैल्यू जो है उसको रिटर्न करता है। मीन जो है वह मिनिमम वैल्यू को रिटर्न, जो सबसे जो कम होगा, बहुत सारे रेंज में जो कम वैल्यूज होगा उसको रिटर्न करेगा। एवरेज वह एवरेज निकाल कर देता है। इसी प्रकार से जो है यहाँ पर सम तो वह कॉलम का सम निकाल कर देता है। काउंट जो है वह काउंट करके नंबर काउंट करके देता है। ये सारे हमारे जो हैं वह क्या है? काउंट स्टार। देखिए दोनों में ना डिफरेंसेस आपको ज़रूरी है, क्योंकि काउंट स्टार जो है वह क्या करता है और काउंट क्या करता है, तो वो जानने की जरूरत है। देखिए यहाँ पे भी एक एग्जांपल भी दिखाएं आपको। काउंट और कॉलम नेम पास करेंगे ना, और यदि उस कॉलम में कोई एम्प्टी वैल्यू है, कोई नल वैल्यू है, तो वह काउंट नहीं होगा। अभी देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ अमित, देन कवरित, कविता और नल है। तो यहाँ पर जब हम कॉलम को पास करते हैं तो वो नल को काउंट नहीं करेगा, केवल 3 ही को काउंट करेगा, और इसीलिए 3 रिटर्न किया। लेकिन यदि हम काउंट स्टार करेंगे तो ये आपका जो नल वैल्यू है उसको भी काउंट करेगा, इसीलिए इसका आउटपुट जो है वह 4 है। तो चलिए सबसे पहले मैं ना इसको प्रैक्टिकली दिखाना चाहूँगा कि कैसे यूज करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो फंक्शन है मैक्स मीन है, तो मैं इसको करके दिखाता हूँ। मैक्स और मीन है, तो देखिए यहाँ पर ना एक टेबल है हमारे पास। सेलेक्ट स्टार दिखा दूँ पहले, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। देखिए हमारे पास टेबल है यहाँ पर, ठीक है। अब यदि हम ई सैलरी जो है उसमें से मैक्सिमम देखना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट और मैक्स ले लेते हैं। अब मैक्स के अंदर हम क्या कर देते हैं? कॉलम को पास कर देते हैं ई सैलरी जो हमारा कॉलम है। अब जब देखेंगे ना कि अब देखेंगे तो इसमें से फ्रॉम टेबल नेम इज EMP। तो अब देखेंगे यहाँ पर ना कि पूरे इस कॉलम में देखिए, अब इस कॉलम में देखिएगा तो मैक्सिमम सैलरी किसका है? मैक्सिमम सैलरी किसका है? कितना है? तो ये 25,000 है, तो आ जाएगा। और इसमें ना हम यहाँ पर एक थोड़ा सा नाम डाल देते हैं, डी नेम डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? डी नेम, ताकि उसका नाम भी आ जाए। तो डी नेम
अब देखिए इसको जब रन करेंगे ना तो क्या रिजल्ट आएगा। डी नेम कॉलम का नाम थोड़ा सा यहाँ पर हो गया है, डी नेम, यस डी नेम। डी नेम, ठीक है। तो अब देखिए क्या रिजल्ट आता है। अब देखिए यहाँ पर जैसा बताया कि मैक्सिमम किसका है, 25,000 है सबसे हाईएस्ट, और कॉलम जो है यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पर 25,000, और यहाँ पर जो डी नेम दिखा रहा है तो क्योंकि हम ग्रुप नहीं किए इसीलिए इसमें केवल फर्स्ट को दिखा दे रहा है यहाँ पर। और उसी प्रकार से यदि हम मीन सैलरी देखना चाहते हैं, मीन सैलरी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम सेम वे क्या करेंगे, कॉमा के साथ मीन डाल देंगे, मीन, और यहाँ पर ई सैलरी डाल देंगे। तो यहाँ पर आपको देखेंगे मैक्स और मीन दोनों दिखेगा आपको। मिनिमम हमारा 10,000 है वह दिख रहा है। तो सेम वे यदि हम यहाँ पर सम पूरा देखना चाहते हैं तो सम फंक्शन यूज कर लेंगे, यहाँ पर सम और ई सैलरी डाल देंगे, ई सैलरी डाल देंगे तो हमारा जो है वो पूरा सम करके दिखा देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा को ऐड करेंगे तो पूरा आ जाएगा। तो सेम भी एवरेज निकाल देंगे तो एवरेज भी आ जाएगा, काउंट करेंगे काउंट भी आ जाएगा। तो आप इस तरह से जो है ना जो ग्रुप फंक्शंस हैं, जो एग्रीगेट फंक्शंस हैं, इसका आप यूज कर सकते हैं। और इसमें ना एक हम आपको दिखाना चाहते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, और मैं देखना चाहता हूँ इसमें कोई नल वैल्यू है क्या, और नल वैल्यू हम इसमें इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको डिस्क्राइब कर लूँ, सेलेक्ट DSC और EMP। तो देख रहे हैं यहाँ पर हमारा नल वैल्यू जो है हम लोग डाल सकते हैं। नल वैल्यूज में ऐसा कोई कांस्टेंट हमारा लगा हुआ नहीं है, एक ही की लगा हुआ है। तो हम चाहते क्या है ना कि जो ई सैलरी है उसको हम लोग नल असाइन करें। तो हम लोग चलिए करते हैं, इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट ए टू टेबल नेम इज EMP, और यहाँ पर केवल हम दो ही कॉलम पास कर देते हैं। एक डालते हैं EID एंड देन EID के बाद हम डालना चाहते हैं केवल डी नेम डालना चाहते हैं, ठीक है। तो डी नेम डाल दिए, और बाकी जो हमारा वह क्या आना चाहिए, वह एम्प्टी आ जाएगा वैल्यूज़ के साथ। हम EID जो है हमारा टाइप देख लीजिए, EID हमारा इंटीजर है तो हम डाल दें यहाँ पर 6, वो ध्यान देना पड़ता है। और हमारा प्रोडक्ट डी नेम, डिपार्टमेंट नेम हम डाल देते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, सेल ही डाल देते हैं, सेल, ठीक है। सेल हमारा जो है वह वर्कर है तो उसको हमें डबल कोट में डालना पड़ता है, बस। अब देखेंगे यहाँ पर कि आप, अच्छा, ई सैलरी डज नॉट हैव, यहाँ पर एक कंडीशन दिया हुआ है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू हैव अ डिफ़ॉल्ट, डजंट हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है नहीं इसमें, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो है नहीं यहाँ पर। तो उसको हम लोग ऐसा करते हैं ना, एम्प्टी असाइन कर देते हैं यहाँ पर। तो इसको यहाँ एक काम करते हैं, छोड़ देते हैं यहाँ पर, और वैल्यूज़ डाल देते हैं, वैल्यूज़, और यहाँ पर 6, देन सेल को डबल कोट में डाल देते हैं, और यहाँ पर हम डाल देते हैं नल को डाल देते हैं, नल। अच्छा, ये सैलरी हमारा नल नहीं जा सकता है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, क्योंकि नल हम लोग यहाँ पर नहीं असाइन कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ थोड़ा है। तो हम लोग वो एक काम कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन सब में जो है नल वैल्यू नो लिखा हुआ है। तो वी नीड टू चेंज दिस वन। तो इसमें ऐसा कर सकते हैं, एक नया कॉलम बना लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अल्टर टेबल
क्या डाल दे, DOB डाल देते, अल्टर टेबल हमारा टेबल नेम EMP है, और ऐड DOB डेट डाल देते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ बन गया। अब देखेंगे यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। देखिए इसमें हम लोग ना समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो अभी देखिए कॉलम बना दी, बिकॉज दोनों में हमारा कांस्टेंट लगा हुआ है, नॉट नल का लगा हुआ है, इसीलिए इसमें हम लोग एम्प्टी नहीं छोड़ रहे थे। अभी यहाँ पर जब काउंट करेंगे ना, सेलेक्ट काउंट और DOB करेंगे ना, DOB करेंगे तो फ्रॉम टेबल EMP, तो अब देखेंगे यहाँ पर ना कि ये क्या आंसर आएगा, 0 आएगा, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, पार्टिकुलर कॉलम को काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है कोई भी इस कॉलम का वैल्यूज जो है वह कुछ है नहीं, इसीलिए वहाँ पर दिखा रहा है 0। लेकिन यदि हम यहाँ पर सेम और यहाँ स्टार डाल देते तो ये क्या करता है, ये पूरा का पूरा क्या करेगा, ये रिकॉर्ड देखेगा, 1 2 3 4 5 पूरा रिकॉर्ड को काउंट करेगा। ये पूरा टेबल में कितने रिकॉर्ड्स है उसको काउंट करेगा। तो यही दोनों में डिफरेंसेस है, और इसके लिए मैं जो है पूरा दिखाया। तो 5 यहाँ दिख रहा है आपको। तो आई होप कि ये सारे जो फंक्शंस जो हम लोग बात कर रहे हैं वो आपको क्लियर हो गया है। कोई भी फंक्शंस आपको प्रॉब्लम ना करे, मैक्स, मीन, एवरेज, काउंट, काउंटर स्टार एंड क्वेश्चंस को जरूर बनाएं आप लोग। जब तक क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे तब तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा। तो ये सारे फंक्शंस जो है आप देख रहे हैं, बता दिया है मैंने, पावर फंक्शंस के बारे में बता दिया। फिर भी यदि कोई फंक्शंस या कोई क्वेरी आपको छूट जाता है या समझ में नहीं आता है तो आप हमसे ज़रूर पूछें, कमेंट बॉक्स में लिखें। एंड प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन। प्रैक्टिस करेंगे जितना उतने आपको समझ में आएंगे। क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगल रूट फंक्शंस एंड मल्टीपल रूट फंक्शंस, तो अगर आप इसको लिखेंगे, बढ़िया से लिख लेंगे तो दिक्कत आपको नहीं होगा। और तैयारी करें, अच्छे ढंग से तैयारी करें। कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप पूछें हमसे, और कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर सिंगल रूट फंक्शंस के बारे में हो चुका है, न्यूमेरिक फंक्शंस के बारे में हो चुका है, स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में हो चुका है। सो I hope children whatever I have discussed this is clear to everyone. So thank you very much for watching this video. Thank you.